تو آج کا جو درس ہے اور باب نمبر 5 ہے کتاب الفتن کا، باب ظہور الفتن، یعنی اس بارے میں کہ فتنوں کا ظہور کیسے ہو۔ حدثنا عیاش بن ولید اخبرنا عبد الاعلی حدثنا معمر عن الزہری عن سعید عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یتقارب الزمان وینقص العمل ویلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الحرج قالوا يا رسول الله أيما هو؟ قال القتل وقال شعيب ويونس والليث وابن أخي الزهري عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سب سے پہلا جو اس باب میں امام بخاری نے کل 6 حدیث لائے، تو ان 6 حدیثوں میں جو پہلا حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ اس میں بیان فرماتے ہیں، حدثنا عیاش بن ولید، فرماتے ہیں کہ ہمیں عیاش بن ولید نے بیان کیا، اخبرنا عبد الاعلی، انہیں عبد الاعلی نے بیان کیا، وہ کہتے حدثنا معمر، انہیں معمر نے بیان کیا، عن الزہری، وہ زہری سے بیان کرتے ہیں، عن سعید، وہ سعید سے، عن ابی ہریرہ، وہ ابو ہریرہ سے، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال، ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جیسے کہ پتہ چلا کہ اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یتقارب الزمان، زمانہ قریب آ جائے، زمانہ نزدیک ہو جائے۔ تو اس کے بہت سارے معنی علماء کرام نے بیان کیے، اور انہی معنی میں ایک معنی جو ہے وہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ جب وہ صحیح بخاری پڑھاتے تھے تو صحیح بخاری کا جو نسخہ میرے پاس ہے اس پر شیخ ابن باز کے تعلیقات اور شیخ البانی رحمہ اللہ کے جو ہے ان دونوں کے اس پہ تعلیقات ہیں۔ تو فرماتے ہیں تتقارب الزمان الظاہر انہ حسی، وہ فرماتے ہیں کہ یہ حسی ہے، ایک معنوی ہوتا ہے، ایک حسی ہوتا ہے۔ تو جس طرح ہم پڑھتے ہیں ایک معنوی نجس ہوتا ہے، دوسرا حسی نجس ہوتا ہے۔ ہم کہیں گے یہ جو ہے مشرکین جو ہوتے ہیں یہ معنوی نجس ہوتے ہیں، انما مشرک نجس، اور حسی جس طرح پیشاب ہے باقی ہے۔ فرماتے ہیں یہ حسی چیز ہے، کیونکہ لوگ جو مشغول ہوئے ہیں، اور جو اس کا یہ بیان فرماتے ہیں کہ اصل چیز ہمیں کس طرح پتہ چلتا ہے کہ زمانہ بہت نزدیک آ گیا ہے۔ فرماتے جب نعمتیں آ جاتی ہیں تو ٹائم کم لگتا ہے، اور جب مصیبت آ جاتی ہے تو وقت بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال میں دے رہا ہوں کہ زمانہ ایک ہی، مثال کے طور پر ایک بندہ صحیح سالم ہے، اس نے دن میں بہت کھایا پیا ہے یا بہت ایکسرسائز کی ہے، یا دن میں پورے کام پہ گیا تھا، جب وہ شام کو آئے گا تو اس سے اچھی طرح نیند آئے گی اور اسے رات لگے گی بہت چھوٹی، جبکہ وہ بھی 8 گھنٹہ سویا ہوگا۔ اس کے برعکس ایک بیمار ہے، اس کو دانت میں درد ہے، اس کو 8 گھنٹے بہت زیادہ ٹائم لگے گا، اس کو لگے گا 8 گھنٹے جیسے مہینے۔ کیونکہ اس کی تعلق سختی کے ساتھ، اور اس کا جو جس کو نیند آ گئی رات کو، اس کا تعلق جو ہے وہ عشرت کے ساتھ ہے، یعنی وہ عیش و عشرت کے ساتھ ہے، وہ دوسری اچھی چیزوں کے ساتھ۔ وہی فرماتے ہیں اذا جاءت الشرور طالت مدہ، جب شر آتا ہے تو زمانہ
लंबा हो जाता है। वइज़ा जाअत निअमा, जब नियामत आती है, कसरतुल मुद्दह, मुद्दत कम हो जाती है। व फस्र बिज़िहाबिल बरका, और बरकत खत्म हो जाती है। अगर देखें आज हम सभी कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं, क्यों टाइम नहीं है? जबकि लोग घोड़े पे सफर करके, पैदल सफर करके उनके बड़ा टाइम होता था, मगर हमारे पास आज गाड़ियां भी हैं, हवाई जहाज भी हैं, बड़ी बड़ी चीजें हैं, फिर भी कहते हैं टाइम नहीं, इंसानों के पास फुर्सत। फुर्सत क्यों नहीं? क्योंकि जैसे हमारे टाइम से बरकत छीन ली गई है। वही फरमाते बरकत छिन गई है तो टाइम जब चलता है तो बहुत तेज चलता है, हमें पता भी नहीं चलता कि इसी को फरमाते यतक़ारबुज़्ज़मान, जमाना करीब होता जाएगा। इसके बहुत सारे माना जो है उलमाए किराम ने बयान किए हैं, और जिसका तरफ मैंने यहाँ पर मतलब वो जो शेख इब्न बाज रहमतुल्लाह ने जब सही बुखारी में पढ़ाते थे तो उनने इसका शरह यही की थी कि जब मतलब शर आ जाता है तो जमाना बढ़ जाता है, इसको कहते हैं उर्दू में वो बीमार की रात होती है, यानी बीमार की रात बहुत लंबी होती है। या इसी तरह विसाल की रात बहुत छोटी होती है और हिजर की रात बहुत लंबी होती है। जैसे कि अदब से जो ताल्लुक रखते हैं वो इस चीज को अच्छी तरह समझते हैं। पहली चीज नबी कृष्ण ने कुछ चीजें फरमाई, यतक़ारबुज़्ज़मान, जमाना करीब होता जाएगा या सुकड़ेगा। वयनकुसुल अमल, अमल की कमी हो जाएगी, अमल कम हो जाएगा। वयुल्क़ा शुह, और लोगों में शुह डाल दी जाएगा। शुह के बारे में खुद फरमाते हैं अल बख्ल मअल हिर्स, यानी ऐसी कंजूसी जिसके साथ लालच। अगर बंदा खाली कंजूस हो तो अलग चीज है, वो वकील होगा, मगर शुह ऐसी नियामत, ऐसी बुखल को कहते हैं जिसमें हिर्स हो, यानी एक बंदे को तो लालच भी है और दूसरी तरफ वो वकील भी है, यानी कमाता से ज्यादा करने की कोशिश करता है और खर्च न करने की कोशिश करता है। यानी इसका मतलब यह है कि एक बंदा मुलाजिम है, कहता है ठीक है मुझे अल्लाह ने अच्छा रोजगार दिया है, कमाता हूँ, मगर इसके साथ साथ वो चाहता है कि उसको और कुछ मिले। क्यों? उसके तो जरूरियात वैसे भी उससे भी जो तनख्वाह मिलती थी उससे भी हो जाती है, मगर वो चाहता है कि और मिल जाए ताकि वो कमाए ज्यादा, खर्च कम हो। उसकी तनख्वाह पूरी की पूरी बचनी चाहिए, और जो उधर इधर से दाएं बाएं से ले ले उसके लिए बहुत अच्छी लगती है। इसी को कहते हैं वयुल्क़ा शुह, यानी ऐसी चीज डाल दी जाएगी, यानी बुखल भी डाल दिया जाएगा और माल की लालच भी डाल दी जाएगी। इसी को उलमा कहते हैं शुह। वतज़हरुल फितन, और फितने जाहिर हो, यही है बाबु ज़ुहूरुल फितन, और इसी वर्ड से वतज़हरुल फितन, इसी वर्ड से इमाम बुखारी ने बाब बांधा है, बाबु ज़ुहूरुल फितन, फितनों का ज़ुहूर होना। ये चार चीजें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। पहला, जमाना करीब आता जाएगा, अमल कम हो जाएगा, और लोगों में जो है शुह डाल दिया जाएगा, जिसको अशुह किसको बोलते हैं? शुह के माने हैं दिलों में लालच डाल दी जाएगी और उसके साथ बुखल भी डाल दिया जाएगा। हो गई तीन चीजें, वतज़हरुल फितन, और फितने जाहिर हो जाएंगे। वयकसुरुल हरज, वयकसुरुल हरज, और हरज बढ़ जाए, ज्यादा हो जाए। पांच चीजें। कालू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने पूछा, यानी असहाब रसूल सब ने पूछा, या रसूल अय्यु अय्यु मा हुआ, वो चीज क्या है? यानी वो जो चीज जिसका जिक्र आपने अय्यु मा हुआ, वो चीज क्या है? काल अल कत्ल, अल कत्ल, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इससे मुराद कत्ल है। अब ये दूसरी हदीस जो है वकाल शुआइब व यूनुस व लैस व इब्न अखी, ये दूसरी सनद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इसी हदीस की बयान करते हैं। तो इसके साथ ये दूसरी हदीस है। अब जो तीसरी हदीस है इसमें पांच चीजें अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाई। पहले हदीस में जमाना सुकड़ जाएगा, करीब आ जाएगा, अमल कम हो जाएगा, लोगों में लालच और कंजूसी एक साथ डाल दी जाएगी, फितने जाहिर होंगे और हर्ज ज्यादा बढ़ेगा। तो उन्होंने फरमाया ए लफ्ज़ हर्ज क्या होता है? तो आपने फरमाया कत्ल ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद हद्दसना मुसद्दद हद्दसना उबैदुल्लाह बिन मूसा अनिल आमश अन शकीकिन क़ाल कुन्तु मा अब्दुल्लाह व अबी मूसा फ़क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न बैन यदै अस्साअ लिअय्यामन यंज़िलु फ़ीहा अल-जहल व युरफ़अु फ़ीहा अल-इल्म व यकथुरु फ़ीहा अल-हरज वल हरज अल-क़त्ल। तो ये और एक हदीस है। हद्दसना मुसद्दद,
ہمیں بیان کیا ہے مسدد میں. اور میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ جہاں پر ہمیں لگے کہ سند کے بارے میں کوئی خاص بات جو جہاں پر بیان کرنی ہوگی اس کی طرف انشاءاللہ دھیان دیں گے، اور جہاں پر لگے کہ کوئی خاص چیز نہیں ہے اس میں تو وہاں پہ اور کوئی چیز ضرورت نہیں ہے. تو سند کی طرف وہ سند پر زیادہ زور کم ہی دیتے ہوئے متن پہ دے دیں گے. مسدد وہ کہتے عبید اللہ بن موسیٰ، انہیں آمش سے، انہیں شقیق سے، کنت مع عبداللہ و ابو موسیٰ، وہ عبداللہ اور ابو موسیٰ کے ساتھ تھے. تو اب اس حدیث میں کیا فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا فقالا، یعنی ان دونوں نے، یعنی عبداللہ نے بھی اور ابو موسیٰ الاشعری نے بھی، فقالا، بس ان دونوں نے اس حدیث کو جو ہے روایت کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جسے پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث میں ہے کہ فقالا، ان دونوں نے کہا، ان بین یدی الساعۃ بایام، یعنی قیامت کے درمیان کچھ دن ہے، یعنی قیامت آنے سے پہلے کچھ دن ہے. ان بین یدی الساعۃ بایام، یعنی ہمارے درمیان، یعنی جس دور سے نبی سے بیان فرما رہے ہیں، اور قیامت کے درمیان کچھ دن ہے، یعنی ان دنوں میں کچھ ایسے دن ہوں گے، لایامن، کچھ ایسے دن ہوں گے، ینزل فیہ الجہل، جن میں جہلت کو نازل کیا جائے. اگر دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لفظ استعمال کیا ہے وہ نازل، یعنی جب علم اٹھے گا تو جہلت خود بخود رہے. وَيُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ، اور علم کو اٹھایا جائے گا. اس کی شرح میں صحیح بخاری کتاب العلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے علم کو اٹھائے گا. اس کی مثال اللہ نے فرمایا کہ بقبض العلماء، عالم مر جائیں گے. اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ علم عالموں کے اٹھ جانے سے کیوں ہوتا ہے، کتابیں ختم ہونے سے کیوں نہیں اٹھتا. اس بات کو تھوڑا غور سے سنیے گا، اور یہ بہت ہی عمدہ چیز ہے کہ استاد کی ضرورت کتاب سے زیادہ ہوتی ہے. اس کی مثال دے دیتا ہوں. ہم ہسٹری پڑھتے ہیں، ہسٹری میں ہم پڑھتے ہیں ایک چیز جس کو ہم بولتے ہیں، ہسٹری میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ہمارے پاس ایسے مونومنٹس ہوتے ہیں، ایسے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جن کو ہم نہیں پڑھ پاتے. ہم کیوں نہیں پڑھ پاتے؟ کیونکہ جو زبان میں وہ لکھا گیا ہے، جن گرافکس میں وہ لکھا گیا ہے، وہ کوئی نالج تھی جو لکھی گئی تھی ان پہ، وہ جو کی گئی تھی، مطلب چاہے لوہے کی چیزیں تھی، چاہے گولڈن چیزیں تھی، چاہے مٹی کی چیزیں تھی، چاہے پتھر پہ جس چیز پہ لکھا گیا تھا، یا کچھ چیزیں ہمیں ملتی لکھی ہوئی چیز، کوائنز سے لکھا ہوگا، ہم اس کو نہیں پڑھ پاتے. کیوں نہیں پڑھ پاتے؟ کیونکہ ہمارے پاس وہ استاد نہیں جو اس کو پڑھ پاتے. اس کے برعکس اگر ہمارے پاس کوئی ایسا آدمی ہوتا ہے جو اس زمانے کا ہوتا تو ہم بہت ساری کتابیں لکھ لیں. یعنی اگر بچے کے پاس کتاب رکھ لو گے، استاد نے، وہ کچھ نہیں کر سکتا کتاب. یہی ہمارے ساتھ ہوگا، اور یہی اللہ کے رسول نے فرمایا. کتابیں تو یہی رہے گی، بخاری کہیں نہیں جائے گی، مسلم کہیں نہیں جائے گی، قرآن کہیں نہیں جائے گی، یہی پہ رہے گا. مگر علم پھر کیوں اٹھے گا؟ کیونکہ اس کے سمجھنے والے، اس کو سمجھنے والے، اس کے سمجھانے والے نہیں رہیں. یہی فرمایا ینزل فیہ الجہل، جہل نازل کیا جائے گا، ویرفع فیہ العلم، اور علم کو اٹھایا جائے گا، ویکثر فیہ الحرج، اور حرج کو جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا. والحرج القتل، اور حرج جو ہے اس کے بارے میں فرمایا یہ قتل ہے. اب یہاں پر فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں یہ جو کچھ باتیں اس میں کہ خاص کر یہ بات جو ہے علم اٹھایا جائے گا، اس کے بارے میں ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں، وقال الطحاوی، امام طحاوی نے فرمایا، قد یکون معناه فی ترک طلب العلم خاصہ والرضا بالجہل. یعنی انہوں نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ علم کو چھوڑیں گے، یعنی طلب علم، یعنی علم کو حاصل کرنا چھوڑیں گے، اور وہ اس پر راضی ہو جائیں گے کہ ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں. وذلك لأن الناس لا يستوون في العلم لأن درجة علم تفاوت. قال تعالی، کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ علم کے جو مطلب لیولز ہے یہ ڈیفرنٹ ہے، ہر ایک کی لیول الگ الگ ہوتی ہے. یعنی جس لیول تک بندے کو پہنچنا تھا اس لیول تک وہ پہنچنے کی کوشش بھی نہیں کرے. خیر کیا فائدہ، چلو مجھے بہت پتا ہے. تو اسی لیے اللہ نے فرمایا، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وفوق
कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, सूरह यूसुफ में है कि हर एक इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है, और फाइनली अल्लाह है। यानी हर इल्म फौका कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, इसकी भी दो तशरीह है कि हर एक आलिम के ऊपर एक आलिम होता है, यानी एक जानने वाले से ज्यादा जानने वाला होता है, और अल्लाह सबसे ज्यादा जानने वाला है। तो इसीलिए फरमाया कि जो ये है कि अल्लाह ताला किस तरह से इल्म खत्म करेगा, युफ़क़दुल इल्म बिफ़क़दिल उलमा, यानी उलमा जो है वो इस दुनिया से चले जाएंगे, और इसीलिए ये भी कयामत की निशानियों में से, क्योंकि असल में फितने ज्यादा तब बढ़ते हैं जब इल्म की कमी आ जाती है, जब जहल बढ़ जाता है, फिर लोग नए नए फितनों में पड़ जाते हैं, नए नए गुरु आ जाते हैं, नई नई बातें आ जाती हैं। और इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कयामत से पहले कुछ ऐसे जरूर दिन आएंगे, नहीं ऐसा मुद्दत, ऐसा टाइम आएगा, ऐसा वक्त आएगा कि इल्म को उठा लिया जाएगा, जहल को नाजिल किया जाएगा, और जो है कसरत से जो कत्ल किए जाएंगे। और अल हर्ज जो कहते हैं ये असल में हबशी लफ्ज है जिसको कत्ल बोलते हैं अरबी में। तो इधर से भी ये पता चला कि अल्लाह ताला जो है आलिमों को ही जो है उठा लेंगे। इस पर मुझे एक कुरान की एक बहुत बड़ी बात याद आती है कि कुरान ने जहां किताब और उस्ताद के बारे में, याद रखिएगा, उस्ताद ज्यादा इंपॉर्टेंट है किताब से, क्योंकि किताब उस्ताद को नहीं बना सकती, उस्ताद किताब को लिख सकता है। इसकी मैं दलील देता हूँ किताब और सुन्नत से। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने खुद फरमाया युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा व मा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। ये जो कुरान है, युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, इससे बहुत सारे लोग गुमराह भी होते हैं और इससे बहुत सारे लोग हिदायत भी पाते हैं। मा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और इससे गुमराह नहीं होते सिर्फ फासिक लोग। तो यहाँ जब किताब की तरफ बात लौटाई गई तो कहा गया दोनों चीजें होती है। कुछ लोग इस किताब को नासमझी की वजह से, तावीलात की वजह से, अपने मतलब खुद पर्सनल इंटरप्रिटेशन की, सल्फ सालिहीन की इंटरप्रिटेशन को छोड़ के जो भी करते हैं वो गुमराह हो जाते हैं, और कुछ लोग जो है हिदायत पाते हैं और गुमराह नहीं होते इल्लल फासिक। मगर इसके बारे में देखिए, जब भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया तो कभी ऐसा खदशा नहीं था। क्या फरमाया? यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम वमन युती अल्लाह वमन युती रसूला फक़द अता अल्लाह। यहाँ कोई शक नहीं, वहां शक है, शक इस माने में है कि बंदा कुरान पढ़ के गुमराह भी हो सकता है अगर उसको समझ में ना आ जाए। मगर यहाँ पर कोई शक नहीं कि जो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करेगा, जो भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेगा, वमन युती अल्लाह वमन युती रसूल फक़द अता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जब भी ये कहा गया, फिर कहा गया अतिउल्लाह व अतिउ रसूल व उल अम्र, फिर तो उल अम्र को छोड़ दिया, फिर कहा फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शै, तो वहां पर भी अतिउल्लाह अतिउ रसूल ने, जब भी अल्लाह। इसी तरह और एक मिसाल, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के 73 फिरके हो जाएंगे, कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतुन वाहिदा, क़ालू मन हिया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। तो आपने रास्ता दिखा दिया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं और मेरे असहाब होंगे। यहाँ ऐसा क्यों? ऐसा भी कह सकते थे कि जो कुरान हदीस पर चले, जिस तरह दूसरे, यहाँ फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, क्योंकि किताब जो होती है इसकी इंटरप्रिटेशन, टेक्स्ट की इंटरप्रिटेशन लोग कर सकते हैं, मगर जब आलिम एक है वो वही इंटरप्रिटेशन करेगा उसकी। यानी किताब है मगर किताब की इंटरप्रिटेशन और कुछ की जाएगी, और उसका माना कुछ ऐसा होगा कि वो खुद भी है, जिसको इकबाल ने भी कहा था कि इसमें तो ऐसी तावीलात उलमा ने की हैं कि जिब्रील भी सोच रहा है कि मैं ये कुरान नहीं लाया, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये सोच रहे हैं कि ये कुरान मुझ पर नाजिल नहीं हुआ, और अल्लाह तो है ही कि मैंने ऐसा कुरान भेजा ही नहीं, जो फारसी में उनका शेर है। तो ये ऐसी तावीलात करते। अब अगर बंदा हाजिर हो, आलिम हाजिर हो, तो ऐसी तावीलात को कोई कह सकता कि ये तावील जो है ये तावील गलत है। इसीलिए यहाँ पर भी इब्न हजर ने जो इमाम तहवी हनफी रहमुल्लाह की बात जो बयान की है, उनने भी ये कहा है कि जो सही बुखारी की हदीस की शरह है कि इल्म जो है वो किताबें खत्म नहीं होगी। आज लोग कह रहे हैं ना इतनी किताबें बन रही हैं, किताबें तो है मगर इमाम बुखारी जैसा मुहद्दिस कहाँ है, इमाम मुस्लिम जैसा मुहद्दिस कहाँ है, अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक, हम्बल जैसे फकीह कहाँ है। तो असल मसला ये है कि किताबें तो वही है, किताबें ज्यादा लिखी गई। अगर देखा जाए जो किताबें नबी के के जमाने में थी, क्या था? न होने के बराबर, मगर इल्म वही है। सहाबा ने कितनी किताबें लिखी, न होने के बराबर, मगर इल्म वही था। ताबी ने कितनी किताबें लिखी, न होने के बराबर, मगर इल्म वही वही है। आज कितनी किताबें लिखी गई, आज किताबों की बूछाड़ है।
اگر ایک بندہ ایک ٹاپک کی کتابیں پڑھنا شروع کر دینا اس کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، مگر اس فن پہ کتابیں ختم نہیں ہوگی، مگر پھر بھی جہل۔ تو لوگ کہتے ہیں نا علم بڑھ رہا ہے، علم کا تعلق علماء کے ساتھ، علم کا تعلق کتابوں کے ساتھ نہیں، یہ ہمیں دین سکھاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا وَيُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ، علم کو اٹھا دیا جائے گا۔ جب لوگ کہیں گے، آپ کہیں گے ٹیکسٹس بڑھ رہے، کتابیں بڑھ رہے، علم نہیں بڑھ رہا ہے، کیونکہ علم اپلیکیشن ہے۔ آپ اس علم کو کس طرح سمجھتے ہو، پھر اس کو کس طرح انٹرپریٹ کرتے ہو۔ آپ نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے، میں اس میں ایک مثال دیتا ہوں، مطلب قرآن کی ایک آیت ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اخلعنا علیک، یعنی اے موسیٰ علیہ السلام آپ دونوں اپنے جوتے باہر نکالو، انک فی وادی طویٰ، آپ جو ہے پاک وادی میں ہے۔ تو اس پر لوگوں نے اشارہ کر دی کہ اس کا مطلب یہ ہے، سفیان نے کہا اس کا مطلب ہے جوتے دو ہوتے ہیں، نالین دو ہوتے ہیں، جوڑا ہوتا ہے نا دو، تو کہا کہ اس سے مراد ہے دنیا بھی چھوڑ دو آخرت بھی چھوڑ دو۔ یہ تعویل کی، یہ تشریحات کی۔ یا وخلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار، تو کہا میوزک تو یہی ہے کہ میں نے انسان کو چھنچھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ تو اصل چیز جو ہے وہ کتاب نہیں ہے، اصل چیز جو ہے وہ استاد ہے، وہ عالم ہے، اور عالم کے ساتھ ہی علم کا تعلق۔ اس چیز کو ہم ہمیشہ ذہن میں رکھتے، اکثر ہمارے ذہن میں کوشچن آتا ہے کہ اب تو علم تو کتابیں تو بڑی لکھی رہی جاتی، تھیسس بڑی بڑی، ایک ایک پوائنٹ پہ اتنی کسی سے ہو کیا رہا ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کس طرح ختم کیا جائے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے ہمارے پاس ساری کتابیں ہیں، مگر ان کے جن لوگوں نے وہ کتابیں لکھی تھی، جن لوگوں کے پاس وہ علم تھا وہ نہیں ہے۔ یفقد العلم بفقد العلماء، یعنی علم جو ختم ہوگا وہ علماء کے جانے سے۔ اس کے بعد حدثنا عمر بن حفص حدثنا ابي حدثنا الاعمش حدثنا شقيق قال جلس عبد الله وابو موسى فتحدثا فقال ابو موسى قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر یہ وہی حدیث ہے، ان بین ید الساعة ایاما يرفع فيها علم وينزل فيها الجهل ويكسر فيها الحرج والحرج القتل۔ اس کے بعد جو اور ایک حدیث ہے، یہ وہی حدیث ہے جس کو ہم نے تشریح کی ہے، یہ دوسری سند کے ساتھ جو ہے اس کو لائے۔ اس کے بعد حدثنا قتیبہ حدثنا جریر عن الاعمش عن ابی وائل قال انی لجالس مع عبد الله وابی موسى رضی اللہ عنہما فقال ابو موسى سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم مثله الحرج بلسان الحبشة القتل۔ یہاں ایک ہی چیز اس میں ایڈ کی گئی، یہ وہی حدیث ابو موسیٰ والی حدیث، کہ اس میں ہم نے یہ سنا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ، پھر اس کی شرح کی والحرج، حرج کس کو بولتے ہیں، بلسان الحبشة القتل، اور حبشی زبان میں اس کو بولتے ہیں قتل۔ اور اسی طرح کچھ عربی زبان کے بغیر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ استعمال کی، جس طرح کک ہے، یعنی باہر پھینکو، باہر پھینکو، یہ بھی عربی زبان کا لفظ نہیں، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب حسنین میں سے، مجھے یاد نہیں حضرت حسین سے یا حضرت حسن سے اس وقت کہا تھا جب انہوں نے صدقے کی کھجوریں کھائی، تو فرمایا تھا کک کک، باہر پھینکو، باہر پھینکو آپ، کیونکہ آل رسول پر جو ہے صدقہ حرام ہے۔ اب دیکھیں حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبہ عن واصل عن ابی وائل عن عبد الله وأسبه رفعه قال بين يدي الساعة أيام الحرج يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل قال أبو موسى والحرج القتل بلسان الحبشة۔ تو اس حدیث میں بھی ان کو میں صرف یہ وہی حدیث ہے کہ اس میں بھی وہی بات بیان کی گئی، آخری حدیث ہے۔ وقال ابو عوانہ عن عاصم عن ابی وائل عن الاشعری انه قال لعبد الله تعلم الايام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ايام الحرج نحوه قال ابن مسعود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول
मिन शिरारिन नास मन तुदरिकुहुमुस साअह व हुम अहयाउन। अगर इन 6 हदीसों की, इसकी मैं पहले लफ्जी तर्जमा करता हूँ आखिरी हदीस की। अगर इन 6 हदीसों को जो मैंने आपके सामने बयान किए हैं, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए और इमाम बुखारी ने इनको अलग अलग संदों से जो है ये बातें बयान की हैं, कि कुल मिला के जो पहली हदीस थी उसमें 5 चीजें थी, कुछ में 3 चीजों का जिक्र है, कुछ में 2 चीजों का, कुल मिला के ये 7 चीजें आती हैं। पहले में जो 5 है और उसमें 2 चीजें और ऐड हो गई कि इल्म उठा लिया जाएगा और जो है जहल फैलेगा। तो इसी तरह जो आखिरी हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि अबू अवाना बयान करते वो आसिम से, अबू वाइल से, अबू मूसा अशरी से, अन्नहु क़ाल लि अब्दुल्लाह, उन्होंने अब्दुल्लाह से कहा, तअलमुल अय्यामुल लती ज़करा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्यामुल हरज, कि आप हमें ये फरमाते कि हमें ये बताओ कि इन्हें आपने सीखा था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया था कि अय्यामुल हरज यानी कत्ल के दिन है, नहू यानी इसी जैसा। काल इब्न मसूद समिअत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह की, इब्न मसूद इसकी शरह में फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल फरमाते थे कि यकूल मिन शरारिन नास, सबसे बदतरीन या सबसे बदबख्त लोग या सबसे शरीर लोग वो होंगे, मन तुदरिकुहुमुस साअह, जिनको कयामत लपेट लेगी, वहुम अहया, और वो जिंदा होंगे। यानी इसका मतलब ये है कि सबसे बदतरीन लोगों पर जो कयामत होगी वो सबसे बदतरीन लोगों पर ही होगी। तो इसका मतलब यह है कि इंशाल्लाह वो हम जो आखिर इसके बाद जो हम हदीस पढ़ेंगे जिसमें बहुत सारी चीजें आ जाएगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा क्यों फरमाया कि कयामत उन लोगों पर होगी जो सबसे शरीर बंदे होंगे, सबसे जलील लोग होंगे, सबसे बदबख्त लोग होंगे, उन्हीं पर जो है कयामत होगी। वहुम आया, यानी कयामत सबसे बुरी लोगों पर आएगी। उसकी एक वजह यह है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया सूरज तब तक चढ़ता रहेगा जब तक एक भी बंदा जो है वो अल्लाह अल्लाह करे, अल्लाह की इबादत करने वाला, एक भी तौहीद पर रहने वाला एक ही बंदा जब तक रहेगा तब तक अल्लाह ताला उस बंदे के लिए दुनिया को कायम रखेगा कि इस बंदे को भी आना है, तब तक अल्लाह ने वादा किया है कि मैं इस दुनिया को चलाता रहूंगा। और जो ही वो खत्म होंगे तो फिर शरार नास, जो सबसे बदतरीन लोग होंगे, उन पर अल्लाह ताला जो है कयामत बर्पा करेगा। कुल मिला के अगर हम इन हदीसों की शरह करते हैं तो 2-4 चीजें मैं आपको इसके एंड में बताता हूँ कि सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुहूरुल फितन के बारे में, यानी जो इमाम बुखारी ने बाब बांधा ज़ुहूरुल फितन, फितने जाहिर होंगे, तो फितनों जाहिर में 2-4-5-6-7 फितने अलग अलग हदीसों में आए हैं। पहले है कि जमाना मतलब सुकड़ेगा, नजदीक होगा, जिस तरह इसकी शरह मैंने बताई कि जब जब नियामतें चली जाती, बरकत चली जाती, टाइम तो वही होता है मगर बहुत कम लगता है। और दूसरा, अमल घट जाए, इल्म तो इल्म भी नहीं होगा, अमल भी नहीं होगा। लोग कहते हैं इल्म बढ़ जाएगा अमल बढ़ जाएगा, कभी नहीं, ना इल्म बढ़ेगा ना अमल बढ़ेगी, क्योंकि जहल बढ़ जाएगा। अलबत्ता अब जो लोग कह रहे हैं कि इल्म बढ़ रहा है, ये असल में इल्म से जब हम यहाँ मुराद लेते हैं तो यहाँ पर क्या मसला, इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। कि लोग कहते हैं देखो हमारे पास जहाज नहीं था, इसका इल्म। असल में उलूम नहीं है, इल्म नहीं। असल में हम अगर टेक्निकली देखा जाए, हम इनको कहते हैं सीखनेस। ये इंसान कुछ सीखता है। इल्म क्या है? इल्म जिसको मुहद्दिसीन या जिसको अल्लाह ताला बयान करते हैं कि असल में इल्म क्या है, असल में हमें ये देखना है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं अब ये इबादत किस तरीके से करनी है, किस नहज पर करनी है, किस मनहज के मुताबिक करनी है और किस तरीके पर करनी है, इसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस किए गए। और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस किए गए तो उन्होंने हमें समझा दिया। अब जो ये जमाना दूर होता जाता है तो लोग इस उस अल्लाह तक पहुंचने की, उस अल्लाह की सही मानों में इबादत करने के लिए अपने तरीके लाते हैं। तो ऑटोमेटिकली जो भी इस दीन को समझने वाले थे, समझाने वाले थे, एक एक करके उनकी तरह कम होती जा रही है। अब यहाँ कह रहा है इल्म बढ़ रहा है। इल्म किस चीज का बढ़ रहा है? इल्म किस चीज का बढ़ रहा है? इल्म इस चीज का बढ़ रहा है कि हम अपनी जिंदगी को किस तरीके से आसान बनाए। साइंस का मकसद ये नहीं है
कि हम अल्लाह को पहचाने। कभी भी ये मकसद नहीं रहा साइंस का कभी मकसद ये नहीं रहा। कितने इल्म बढ़ रहा है, इल्म नहीं बढ़ रहा है। साइंस का मकसद ये है कि इंसान की जिंदगी सबसे कंफर्टेबल किस तरीके से बनाई जाए। एक बंदा था वो हाथ से कपड़े धोता था, उसके लिए वॉशिंग मशीन बनाई। एक बंदा घोड़े पे सफर करता था, उसके लिए जहाज बनाया गया, गाड़ी बनाई गई, ये करता था। एक आदमी जो था वो गर्मी के लिए उसके पास तरीके थे, उसके लिए नई नई चीजें बनाई गई। एक बंदा अपने आप को ठंडा देने के लिए दरख्त के नीचे बैठता था, पंखा हाथ से चलाता था, उसके लिए इतने एसीज आ गए। नहीं, अगर देखा जाएगा साइंस का बुनियादी मकसद है इंसान की जरूरियात जो है, इंसान के जो मसाइल है उनको आसान से आसान तरीका जो है उसके लिए फराहम करना, उसकी जिंदगी को सबसे कंफर्टेबल बनाना। ये साइंस का मकसद है, इस इल्म का मकसद है, इन उलूम का मकसद है। जितने मेडिकल साइंसेस में हैं, जितने भी हैं, या जितने भी चीजें हैं, ये सारा का सारा इनका ताल्लुक है इंसान दुनियाई जिंदगी के साथ किस तरीके से आसान बनाया जाए। और जिस इल्म की यहाँ पर बात चल रही है कि इल्म उठा लिया जाएगा, जहल फैल जाएगा, उसका ताल्लुक जो है वो शरीयत के साथ है, वो उस चीज के साथ है जिस मकसद के लिए हमें बनाया गया था। हमें इस मकसद के लिए नहीं बनाया गया कि हम अपनी जिंदगी को आसान बना दें, तो करना ही करना है हमें, क्योंकि अल्लाह ने हमें अक्ल दे दी, हम वो चीज कर लेंगे। हमें वो चीज अल्लाह ताला ने अक्ल देने की वजह से ही हमने वो सारी चीजें, और हमें कभी भी शरीयत ने इन चीजों के लिए रोका नहीं है कि हम ऐसा ना करें, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सही मुस्लिम की हदीस है जिसको मैं अक्सर बयान करता हूँ, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, सही बुखारी की भी शायद है, कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि तुम दुनियाई उमूर मुझसे ज्यादा जानते हो। जब वो खजूर का मसला हुआ था, उसमें पॉलिनेशन का मसला, दुनियाई उमूर आप में ज्यादा जानने वाले। तो ये मसला है कि दुनियाई उमूर में हम आगे बढ़ते जाएंगे, मगर इल्म का जो घटना है उसका ताल्लुक ये है कि जो दीन बेदारी होगी, जो शरीयत फहमी होगी, जो मैं युरीदुल्लाह बिही खैरन यफ़क़हु फ़िद्दीन, जो वो वाला मसला है वो कम होता जाएगा। और इसीलिए जब ये कम होता जाएगा, फिर लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि दीन क्या था, दीन क्या नहीं था। और इसमें आगे भी हदीसें आएगी कि तब तक कयामत बर्पा नहीं होगी जब तक लोग जो है उसी तरह बुतों की पूजा नहीं करेंगे जिस तरह वो पहले कौमें करती थी, चाहे जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम की कौम करती थी या बाकी कौम। तो ये बड़ा मसला है। इसमें मुझे सबसे ज्यादा जो जिस चीज पर जोर देना चाहता था मैं, वो यही है कि इल्म का घट जाना और जहल का ज्यादा होना, इसका ताल्लुक जो है वो दुनियाई सिकल्स के साथ नहीं है कि एक बंदा दांत निकालता था, अब उसके लिए मशीनरी आ गई है। एक बंदा एक मतलब पेट काट के या उसको कुछ दवाएं दे के शरबत पिला के उसकी इलाज करता था, आज स्कैनिंग है, सारा कुछ हो रहा है, उसको हाथ लगाए बगैर भी ऑपरेशन होते हैं। ये सारी चीजें जो है इंसान की सहूलियात के लिए, ये इंसान की जिंदगी को आसान से आसान बनाने के लिए, न कि इनका ताल्लुक जो है वो अल्लाह के साथ। ये अल्लाह के साथ मतलब क्या है कि इन उलूम के जरिए हम, इनका ये मकसद नहीं बनाया है। इसीलिए इसमें जो है ईसाई भी काम करेगा, यहूदी भी काम करेगा, जो हिंदू भी काम करेगा, दुनिया के हर एक मजहब मानने वाला हो न मानने वाला हो, उसमें उसका शेयर है। जो जितना काबिल है, जितना मेहनत करेगा, जितनी जो है ऑब्जर्वेशन करेगी, वो इस इल्म में आ सकता है आगे। मगर उस इल्म को जिसके वारिसीन अल उलमा वरसतुल अंबिया, उसका सिर्फ और सिर्फ ताल्लुक जो है शरई उलूम से है। और यहाँ पर जो इल्म से मुराद है, यहाँ पर इल्म से मुराद शरई उलूम है, वो कम होती जाएंगी। अगर इसके बरक्स साइंसी दरियाफ्त ज्यादा होती जाएगी, क्योंकि अगर मैंने कुछ मतलब कोई कंट्रीब्यूशन किया, उसके बाद जो आएगा वो ज्यादा करेगा। तो ये जो था, जो ये फीहल जहल, उनमें जहल होगा। और आखिरी बात ये कि सबसे बदतरीन लोग जो आएंगे कत्लो गारत। मिसाल के तौर हम कह रहे हैं ना कि एक तरफ हमने इंसानी जिंदगी को बचाया है, मेडिकल साइंस में इतनी तरक्कियां की, मगर हम ही वो लोग हैं ना जो न्यूक्लियर वेपन्स भी बनाए हैं। एक बटन दबाने से दुनिया का क्या होगा वो हम आज जानते हैं। तो इसीलिए कहते थे ना, वो बचपन में पढ़ा करते थे, साइंस गुड टीचर बड़ा बैड मास्टर, वो कुछ ऐसा ही कुछ कहते थे हम कि गुड सर्वेंट बटा बैड मास्टर। ये एक सर्वेंट भी है मगर बैड मास्टर भी है। अगर हमने इतनी तरक्की की है, गुड सर्वेंट बटा बैड मास्टर, हाँ, गुड सर्वेंट बटा बैड मास्टर, इसमें दोनों चीजें आती हैं। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इतने ज्यादा है कि कभी बंदा ये सोच ही नहीं सकता कि नेगेटिव ज्यादा है, पॉजिटिव ज्यादा है। मतलब अगर हमें बीमारी का, किसी का बीमारी का इलाज हमारे पास नहीं होता, या तो नई बीमारी भी नहीं है, जो नई नई बीमारी आ गई था वो भी नहीं आती शायद। तो मगर अल्लाह ने फरमाया कि मुझे बीमारियां भी लानी, उनके साथ दवाइयां भी लानी। अब देखो यही न्यूक्लियर वेपन का मसला आज जो दुनिया में चल रहा है, सारा दुनिया सोच रहा है कि कहीं वो ऐसा ना कर दे तो क्या बनेगा दुनिया। तो यही चीज है, अय्यामुल हरज जो है
وہ دن بدن اور جاتے جائیں گے۔ تو اس علم کا جو بنیادی مقصد ہے وہ مقصد شرعی علوم ہے، اور وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو اپنا وقت اس علم کے لیے دیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اختتام کرتے ہیں، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اور اگر یہاں تک کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔